Hello students, welcome to Adhishri publication. In our today's class, we are going to see your EVS chapter number 12. And the name of EVS chapter number 12 is Drop by Drop. Okay, in this chapter, my dear student, we all are going to see the importance of water. Why water is very important for all living beings and in what way we are going to conserve them. Okay, so the concept overview, need of water, what are the sources of water, then cleaning of water, shortage of water, concept of rainwater harvesting, conservation of water, recycling of water and uses of water. Okay, now curricular goals. Understand the importance of water in daily life. Okay, how important water is for our daily life. Okay, then learn sources and uses of water, and the last, develop habit of water conservation. Okay, see, Earth is the only planet with life on it. Okay, so my dear student, in the entire solar system, Earth is only one planet where life is possible. Okay, the presence of water makes life possible on Earth. तो क्यों life possible है Earth planet पे? क्योंकि यहाँ पे पानी है. ठीक है, 71% of the Earth is covered with water. 71% हमारे Earth का total area पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, the ocean, about 97% of all 97% of all of earth water. ठीक है, ocean में 97% पानी है पूरा अर्थ का. ठीक है, the other 3% is found in rivers, glaciers, underground, etc. अब अगर 97% ओशन के अंदर है तो रेस्ट ऑफ द 3% जो पानी है वो आपका रिवर में, ग्लेशियर में और अंडरग्राउंड वाटर में है. ठीक है, चलिए. Since most of the earth's surface is water, it looks blue when you look at it from the sky. ठीक है, देखिए हमारे अर्थ सरफेस का अगर 71% हिस्सा पानी है तो जब आप इसको स्काई से देखते हो ना तो प्लैनेट अर्थ ब्लू कलर का दिखता है. ठीक है, द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इसीलिए हमारे प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ठीक है, चलिए, नीड ऑफ वाटर, हमें पानी क्यों चाहिए? वाई वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स और वी ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड वाटर. तो देखिए, वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ठीक है, तो वाटर क्या है? सारे लिविंग बीइंग्स का एक बेसिक नीड है. ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर. देखो बच्चों, हम लोग ना पानी के बिना हार्डली 4 से 5 कह सकते हो हार्डली 1 हफ्ता बस सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, plants and animals also need water to survive. Okay, and apart from human beings, plants and animals also need water for their survival. Okay, drinking plenty of water keeps us healthy. If we are drinking plenty of water, it means what? We are keeping our body fit and fine. Okay, now beside drinking, okay, apart from drinking, my dear student, water is required for various other purposes. Okay, we need water not only for drinking. Apart from drinking, we need water for a lot of other activities also, like cooking, bathing, washing clothes and utensils. Okay, now here one brain blitz. A cactus, a plant, can live without water for many weeks. कैक्टस एक प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है. ये कई हफ्तों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, पर बाकी सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो. ठीक है, कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. और कैमल्स कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप क्यों कहलाता है? क्योंकि वो पानी के बिना कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए. ठीक है, चलिए, नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी, माय डियर स्टूडेंट, द सोर्सेज ऑफ वाटर थ्रू व्हिच वी गेट वाटर. ओके, Now, most of Earth water is found in ocean and seas. ठीक है, तो जो 71% हमारे अर्थ का टोटल एरिया जो पानी में है, तो 71% का 97% हिस्सा ओशन और सी के पास है. ठीक है, दिस वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज सॉल्टी. लेकिन पानी तो 97% ओशन और सीज में है, पर ये पानी हम पी ही नहीं सकते क्योंकि सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ है. ठीक है, we get water from rain which fills lakes, rivers and ponds. तो जब हम वो पानी नहीं पी सकते तो हम कौन सा पानी पीते हैं? हम वो पानी पीते हैं जो हम लोगों को बरसात से मिलता है. वो बरसात का सारा पानी रिवर में, लेक में, पॉन्ड में जाके स्टोर होता है, तो वही पानी हम पीते हैं. ठीक है, रेन वाटर गोज अंडर द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड डीप डाउन इन द अर्थ एंड वी गेट इट व्हेन वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ठीक है, बहुत सारा रेन वाटर आपका जमीन के अंदर भी चला जाता है और जमीन के अंदर से उस पानी को निकालने के लिए वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ठीक है, चलिए, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, चलिए, नाउ क्लीनिंग ऑफ वाटर. ओके,
पानी का सोर्स तो पता चल गया, बट वी ऑल्सो नीड टू क्लीन वाटर टू मेक दैम पोटेबल वाटर. Water in rivers, sorry, water in lakes, rivers and ponds is not suitable for drinking. अब बरसात हो गई, बरसात का वो पानी रिवर में, लेक में, पॉन्ड में जाके स्टोर हो गया, लेकिन वो अभी हमारे लिए पीने लायक नहीं है. ठीक है. इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म. वो क्यों नहीं है पीने लायक? क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारी गंदगी है. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेस. और अगर आप गंदा पानी पीते हो तो वो गंदा पानी क्या करता है? वो गंदा पानी हम लोग को बीमार कर देता है. ठीक है. वाटर इज क्लीन इन वाटर वर्क्स बिफोर इट इज सप्लाइड टू आवर होम थ्रू पाइप्स. ठीक है. तो वाटर को क्लीन किया जाता है हमारे घरों में सप्लाई करने से पहले. ठीक है. एट होम्स ऑल्सो वी शुड यूज अ वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर फॉर सेफ्टी टू गेट प्योर पोटेबल वाटर. इसीलिए बच्चों हम लोग को अपने घर में भी पानी पीने से पहले वाटर प्यूरिफायर में उस पानी को प्यूरिफाई करना चाहिए. ठीक है. Clean water is very precious. It should be stored in clean and covered container. Pure water has no color, smell or taste. Okay? So हमारी बॉडी के लिए क्लियर पानी पीना बहुत जरूरी है. और एक क्लीन और साफ पानी का जानते हो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो कलरलेस होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है. ठीक है. सो बॉइलिंग वाटर एंड वाटर फिल्टर, दिस टू आर द मेथड्स while using these two methods we can clean our water. Okay. Now storage of water, where we are going to store our water. Let's see, there is a shortage of water due to, sorry, shortage of water, not storage, shortage of water. There is shortage of water due to the following reason. In our planet Earth, my dear student, we are facing continuously shortage of water. Okay, shortage of potable water. Okay, due to the reasons like less rainfall, drying up ऑफ रिवर्स, वेस्टेज ऑफ वाटर. ठीक है. बरसात कम हो रही है, नदियां सूख रही हैं, साथ ही साथ हम पानी को भी बर्बाद कर रहे हैं. इसीलिए हम लोग को पानी की कमी दिन पर दिन हमारे लिए बढ़ती जा रही है. ठीक है. नाउ ब्रेन ब्लेड्स क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे. व्हाई डू वी वाटर आवर प्लांट्स एवरी डे? हम लोग अपने पौधों में पानी क्यों देते हैं डेली? ओके. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ ब्रेन ब्लेड्स क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. Why do we water our plants every day? हम लोग अपने पौधों में पानी डेली क्यों देते हैं? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे. Why it is important to use clean water for drinking and cooking? ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्लीन पानी पीना, खाना बनाने, मतलब क्लीन पानी यूज करना पीने के लिए और खाने के लिए? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. ठीक है. देखिए, इन सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू गेट वाटर. एट मैनी प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, सो वी शुड कंजर्व वाटर एंड नॉट वेस्ट इट. देखिए, हम लोग क्या है, अपने घरों में रहकर टैप खोला पानी आ गया, लेकिन आज भी हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में बच्चों, आज भी बहुत से लोग ना कई कई किलोमीटर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बाल्टी पानी के लिए. समझ रहे हो आप? हम लोग क्या करते हैं, टैप खोलते पानी तुरंत आ जाता है. नहीं, बहुत सारे रीजंस में 2 बाल्टी पानी के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है. ठीक है. और वो पैदल जाते हैं, और कहीं कहीं पे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 ही घंटे के लिए पानी आता है. ठीक है. इसीलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पानी को सेव करके रखिए. ठीक है. चलिए, नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Now we are going to see the next concept named as rainwater harvesting. तो rainwater harvesting क्या है देख लीजिए. One way to save water is rainwater harvesting. In this process, the rainwater is collected in big containers, drums or in an underground reservoir. तो rainwater harvesting क्या होता है? rainwater harvesting का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे हम बरसात के पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. तो जब बरसात होती है ना, तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर हम लोग अपने छत पर रखते हैं या फैक्ट्रीज के ऊपर रखे जाते हैं, जहां पे बरसात का पानी उसमें स्टोर हो जाता है. ठीक है. देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड यूज्ड लेटर. अब ये बरसात का पानी तो स्टोर हो गया है, उसके बाद इस बरसात के पानी को फिल्टर किया जाता है और फर्दर यूज किया जाता है. ठीक है. दिस डेज मेनी पीपल मेक देयर होम्स एंड फैक्ट्रीज विद द फैसिलिटी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आज के टाइम पे देखोगे आप, तो जो घर बन रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी बन रही है, वहां पे ऑलरेडी कंटेनर्स लगे हुए जिसमें बरसात का पानी स्टोर होगा और फिल्टर हो जाएगा. ठीक है. तो ये है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ मेजरिंग लिक्विड्स, तो ये क्या है देख लेते हैं. Various containers of different capacities are used to measure liquids like milk, water, etc. Liquid is measured in liters. Okay. In this chapter, we are talking about liquid, that is water. Okay. So for measuring water, we use different types of measuring टूल्स लाइक कंटेनर्स. ओके. तो हम लोग कंटेनर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स टू मेजर लिक्विड्स. ओके. लाइक फॉर द मेजरिंग लिक्विड एंड वाटर वी यूज
what we use different containers, okay, and liquid is measured in liters. तो लिक्विड का मेजरिंग यूनिट क्या है, लीटर है, ठीक है। नाउ ब्रेन ब्लिट्स, ये क्या है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी। हमारी कंट्री इंडिया में तमिलनाडु जो सदर्न पोर्शन का हमारा स्टेट है, वो एक पहला ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री का जिसने मैंडेटरी किया है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी ही होगी, ठीक है। मतलब वहां पर रूल अगर नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। चलिए, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर देखते हैं, ये क्या है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी को हमें बचाना चाहिए ताकि हमारे पास पानी की कोई कमी ना हो आगे चल के, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ कंजर्विंग वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है रेन वाटर हार्वेस्ट कीजिए, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर एंड कंजर्विंग इट फॉर फ्यूचर यूज। इसका क्या मतलब है, रेन वाटर को इकट्ठा कीजिए और फ्यूचर के लिए इसको यूज कीजिए, ठीक है। देन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। अब रिसाइकलिंग ऑफ वाटर क्या है, देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज अनदर वे बाय विच वाटर कैन बी कंजर्व। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद दूसरा तरीका जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। यूज वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड होम्स इज सेंट फॉर क्लीनिंग टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स। वंस द वाटर इज क्लीन इट कैन अगेन बी यूज। रेन वाटर का मतलब होता है आपने पानी को ही कलेक्ट कर लिया, उसको क्लीन करके यूज कर रहे हो। अब ये रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है जो पानी ऑलरेडी यूज हो चुका है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे घर हो, वो वापस से वो पानी तो गंदा हो जाता है, तो उस पानी को फिर से साफ किया जाता है और साफ किए हुए पानी को हम दोबारा यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कौन कौन से यूजेस है वाटर के देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वाटर, it help to digest our food. So for the digestion of our food we need water. Then second, food is carried to different parts of bodies with its help. अब हमारा खाना पच चुका है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो जो डाइजेस्टेड खाना है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी देगा, ठीक है। वाटर इज द होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। वाटर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर होता है, पानी में ही तो हमारे मरीन लाइफ क्रिएचर्स रहते हैं, ठीक है। प्लांट नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक देयर फूड, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए और अपना खाना बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम सनलाइट, water dissolve nutrients of the soil and roots carry it to different parts of the plants, ठीक है। पानी क्या करता है, पानी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल को उनको डिसॉल्व करके प्लांट तक क्या करता है, पहुंचता है, और प्लांट्स उसी का यूज करके खाना बनाते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। Living things cannot survive without water, okay. Any living creature, maybe human beings, animals and plants, they are not going to survive in the absence of water. Water is required for many purposes. We need water for many purposes apart from drinking, okay. Then rainwater is the main source of water on the earth, okay. So rainwater is the main source of water, okay. Rainwater is the main source of potable water on this planet earth, okay. Now water should be stored in clean and covered container, okay. It is important step, it is mandatory step, my dear student, that we have to store water in a clean vehicle, in a clean vessels, okay. Now we should conserve water and we also need to conserve our water, okay. So this is all about the chapter. Now my dear students, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.